یسوع اور یہودی۔ بچوں، ہم نے یسوع کے آسمانی باپ کے ساتھ تعلقات پر بات کی۔ پھر عقیدت مند عورتوں، سرکاری اہلکاروں، محصول لینے والوں اور ارد گرد کے عام لوگوں کے ساتھ یسوع کے تعلقات پر بحث کی۔ سب لوگوں کی نظر میں یسوع ایک استاد، ایک طبیب، ایک ہمدرد دوست اور ایک طاقت و قدرت والی ہستی ٹھہرا۔ مگر کچھ لوگ یسوع کے ساتھ دوستانہ مراسم نہ رکھ پائے اور نہ ہی اس کی پیروی پر آمادہ ہوئے۔ آئیں دیکھتے ہیں کچھ جانے پہچانے اور معاشرہ میں اعلیٰ مقام پر فائز یہودی افراد یسوع کو کیسی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ ابراہیم کی اولاد ہونے اور خدا کے چنے ہوئے لوگ ہونے پر ناز کرتے تھے، موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے اور اپنے آپ کو مقدسین کہتے تھے۔ وہ سامریوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے جو یہودی قوم سے باہر شادی کرتے تھے۔ وہ ان کی بھی حقارت کرتے جو توریت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ محصول لینے والے ہوں یا آوارہ عورتیں، یہ سب کے سب معزز یہودیوں کی نگاہ میں گنہگار تھے۔ بچوں، خدا نے یسوع کی دنیاوی پیدائش کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب اظہار رائے یا من پسند راہوں کے چناؤ کی آزادی نہ تھی۔ یہودیوں پر رومی حکومت کا تسلط قائم تھا۔ خدا نے دنیا کی پیدائش سے پہلے انسان کی نجات کے لیے جو منصوبہ بنایا، اس کی تکمیل کا وقت آن پہنچا تھا۔ یسوع یہودیوں کی نظر میں نمبر 1، یسوع کے ان پڑھ ہونے پر یہودیوں کا حقارت آمیز رویہ۔ بچوں، یسوع کے دنیاوی باپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ درست، وہ ایک بڑھئی تھا۔ یسوع کو اوائل عمر ہی سے باپ کی طرح بڑھئی کا کام کرنا پڑا۔ وہ خاندان میں سب سے بڑا بچہ تھا۔ چنانچہ بالکل عام بچوں کی طرح باپ کے کام میں ہاتھ بٹاتا اور ماں کے ساتھ مل کر چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتا۔ یسوع نے دنیاوی طور پر خاطر خواہ تعلیم نہیں پائی اور نہ ہی دوسرے بہت سے یہودیوں کی طرح موسیٰ کی شریعت کے عالم طبقہ سے ان کے طور طریقے سیکھے۔ تو یہودیوں کی نگاہ میں اس کا رتبہ کیسا رہا تھا؟ یوحنا 7 باب 14 سے 15 آیت۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ کفرنہوم میں یسوع کی تعلیم، یوحنا 6 باب 41 سے 42 آیت۔ پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ بچوں، ہیکل ہو یا عبادت خانہ، مذہبی نوعیت کے یہودی یسوع کی حقارت کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا یسوع کا خاندانی پس منظر تو بلند مرتبہ یا مہذب نہیں، نہ ہی اس نے کسی مشہور و معروف مدرسہ سے تعلیم پائی، اور نہ ہی کسی بڑے استاد کی شاگردی میں کچھ سیکھا۔ اگرچہ یسوع کی تعلیمات روح کے لیے آسمانی غذا کی حیثیت رکھتی تھیں، مگر یہودی اس کی تعلیم سے بہرہ مند ہونے کی بجائے اپنی پوری توجہ یسوع کے خاندانی پس منظر پر ہی جمائے رہے۔
अपने आला हस्बो नसब पर नाज की वजह से एक कम तर हैसियत के हामिल बढ़ाई से तरबियत ना ले पाए। नंबर 2, उन्होंने यसू को बदरूहों का मारा समझा। यसू को अपने से कम तर जानने, उसकी बातों पर कान न लगाने के अलावा उसे बदरूहों का सताया समझते रहे। यूहन्ना 8 बाब 43 आयत। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। यूहन्ना 8 बाब 47 से 49 आयत। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यसू ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। यूहन्ना 8 बाब 52 से 53 आयत। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। अब्राहम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप अब्राहम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए। तू अपने आप को क्या ठहराता है? यूहन्ना 8 बाब 58 आयत। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। यूहन्ना 8 बाब 56 आयत। तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यूहन्ना 8 बाब 59 आयत। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यसू छुपकर हैकल से निकल गया। यसू ने यहूदियों से कहा। यूहन्ना 8 बाब 43 से 44 आयत। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। यसू की बात समझने के लिए हर किसी को चाहिए कि इनकसारी और खलूसे नियत से उसके कलाम पर गौर करना सीखे। यहूदी तो उसका कलाम सुनने तक के रवादार ना थे, क्योंकि उनके दिल सच्चाई कबूल करने पर तैयार ही ना थे। वो यसू की तालीमात को दीवानगी ख्याल करते और उसे बदरूहों का सताया कहते रहे। उन्होंने यसू को जाहिल कहकर उसका तमस्खर उड़ाया। चुनाचे यसू का कलाम उनके अक्लो शऊर से दूर रहा। यसू ने कहा था, वो अब्राहम की पैदाइश से पहले भी मौजूद था और ये कि अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। बस फिर क्या था, यहूदी भड़क उठे और उसे संगसार करने को पत्थर उठा लिए। आए देखते हैं और ऐसा क्या हुआ कि यहूदी उसे संसार करने पर तुल गए। यहूदियों ने यसू को मार डालना चाहा।
यूहन्ना 10 बाब 22 से 26 आयत। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यसू हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यसू ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यूहन्ना 10 बाब 27 से 33 आयत। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संगसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यसू ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बेहतेरे अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संगसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संगसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। बच्चों, यसू खुद को आसमान से उतरी जिंदगी की रोटी कहता या खुद को और खुदा को एक कहता, अब्राहम की पैदाइश से पहले अपने वजूद का दावा करता, या ये कि उसका बदन खाने की चीज और उसका खून पीने की चीज है। जब भी उसने खुदा के साथ अपने ताल्लुक की बात की, यहूदियों की बर्दाश्त जवाब दे गई। यूहन्ना 5 बाब 18 आयत। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। यसू की जान लेने पर तुले बहुत से यहूदियों के अलावा एक टोला फरीसियों का भी था। उन्हें फिक्र पड़ी थी कि यीशु अजदाद से चली आई रस्मों और तौर तरीकों के खिलाफ सरगर्म था। यसू और फरीसी फिरका। बच्चों, यसू के जमाना में एक मखसूस तबका के लोग भी थे जिन्हें फरीसी कहा जाता। थे तो ये भी यहूदी, मगर ऐसे मजहबी अफराद पर मुश्तमिल जो मूसा की शरीयत में खास महारत रखते थे। उनकी तवज्जो मुख्तलिफ त्योहारों, क़वायदो ज़वाबित और अनगिनत खुद साख्ता असूलों पर टिकी रहती। उस दौर में उनके इल्मो अदब की बातें कानून का दर्जा रखती थीं। वो अपने आप को ऐसा मुकद्दस फिरका कहते थे जिसकी वजह से मूसा की शरीयत कायम थी। मजहबी हलकों में उनका रुतबा बहुत बुलंद था। वो जब भी गलियों चौराहों से गुजरते, लोगों पर फर्ज था कि नहायत मतानत से उन्हें सलाम पेश करें। वो उस जमाना में लोगों के मजहबी रहनुमा थे।
ان کے علاوہ شریعت کے استاد اور کاہن تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ تحریر شدہ مذہبی عقائد لوگوں کو خدا کے احکام سکھاتے اور ہیکل کے اندر ہر طرح کے رسوم و رواج قائم رکھتے۔ یہ 12 قبیلوں سے لاویوں کا قبیلہ تھا۔ وہ فریسیوں کی طرح ہی رسوم و رواج کا خیال رکھتے اور اکثر اکٹھے نظر آتے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فریسی لوگوں میں جا کر انہیں سکھاتے، جبکہ کاہنوں کا کام سارا وقت ہیکل میں فرائض کی انجام دہی تھا۔ بچوں، کیا آپ یہ فرق بیان کر سکتے ہیں؟ یہودی برطانویوں یا چینیوں ہی کی طرح ایک قوم کا نام ہے۔ فریسی وہ لوگ تھے جو شرعی قوانین کے گہرے مطالعہ سے ان میں ماہر ہو جاتے تھے۔ بالکل بائبل کالج کے طالب علموں یا پروفیسروں کی طرح شریعت کے استاد اور کاہن ہیکل میں پادریوں اور مبلغوں کی طرح خدمات کی ادائیگی میں مصروف رہتے تھے۔ آئیں دیکھتے ہیں کون سی باتیں یسوع کو ان مذہبی رہنماؤں یعنی شریعت کے عالموں اور فریسیوں کے رسوم و رواج سے الگ اور نمایاں کرتی تھیں۔ رسومات، ہاتھوں کی دھلائی، مرکز 7 باب 1 سے 2 آیت۔ پھر فریسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے۔ وہ یروشلم سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ فریسی اور شریعت کے عالم یروشلم سے گلیل کی طرف یسوع کے پاس محض اس سوال کا جواب ڈھونڈنے چلے آئے۔ یسوع بھی تو ایک عالم اور استاد تھا۔ وہ آخر کیسے اپنے شاگردوں کو اجازت دیتا کہ ان اصولوں اور رسوم و رواج کو توڑیں جو فریسیوں نے صفائی کے سلسلہ میں قائم کر رکھے تھے؟ بچوں، بائبل بتاتی ہے یہودی اور فریسی اجداد کی روایتوں اور بہت سی دوسری رسموں کو نسل در نسل نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کی توجہ اجداد کے بہت سے دشوار اور غیر ضروری انداز سیکھنے میں لگی رہتی تھی۔ ان کا خیال تھا ان رسوم کی حرف بہ حرف انجام دہی انہیں خدا کے قریب کر دے گی۔ چنانچہ وہ یسوع کی مخالفت پر تل گئے کہ وہ اپنے شاگردوں کو ہاتھ دھوئے بغیر کھانے سے منع کیوں نہیں کرتا اور رسم و رواجوں کو کیوں برباد کیے چلا جا رہا ہے۔ مرکز 7 باب 5 سے 7 آیت۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ فریسیوں کے دستور کے مطابق جب لوگ ہاتھ دھوئیں تو لازم تھا کہ 2 ہینڈلوں والا ایک جگ استعمال کیا جائے۔ دائیں ہینڈل کو اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا جائے، تب بایاں ہینڈل اپنے بائیں ہاتھ میں تھام کر دائیں ہاتھ پر پانی بہایا جائے۔ یہ عمل 3 بار دہرایا جائے، تب دھونے والا پاک ہو جائے گا۔ اگر اس طرح ہاتھ نہ دھوئے گئے تب یہ ناپاک ہی رہیں گے۔
बहरहाल इस कारकर्दगी का हुक्म खुदा ने तो नहीं दिया था और ना ही ऐसा कोई हुक्म मूसा की तालीमात में मिलता था। किसी अनजाने शख्स ने ये कानून या रस्म कायम कर दी। यूं लोग मुख्तलिफ नजरियात और रसूम व रवाज को खुदा के अहकाम पर फौकियत देने लगे। यहाँ तक उन्होंने सख्त अहकाम जारी कर दिए कि इन तौर तरीकों पर हर कोई सख्ती से अमल किया करे। यसू के शागिर्दों से भी उन्होंने यही तकाजा कर दिया। इसीलिए यसू ने कहा, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। मत्ती 15 बाब 10 से 11 आयत। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। मत्ती 15 बाब 15 से 20 आयत। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। लूका 11 बाब 41 आयत। हाँ, अंदर की चीजें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। अजीजो, यसू के कहने का मतलब था नापाक चीजें वो बुरे ख्याल हैं जो इंसान के दिल में पैदा होते हैं। हाथ धोए बगैर खाना तो महज खुराक को आलूदा करके खाना है। कोई वॉशरूम में जाकर बैठ जाए तो इसमें किसी दूसरे का तो कुछ नहीं जाता, मगर गुनाह आलूदा दिल से की जाने वाली शैतानी हरकतें दूसरों के लिए तबाही का बाइस बनती हैं। चुनाचे यसू ने कहा, अगर रूह में पाकीज़गी हो तो इंसान नापाक नहीं कहलाता। लूका 11 बाब 39 से 40 आयत। खुदावंद ने उससे कहा, ए फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। ए नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? बच्चों, यसू ने फरीसियों को मुस्तरद किया। वो खुदा के असल अहकाम की बजावरी की बजाय अपनी मनपसंद आदतों और बुजुर्गों के तरीकों पर बड़ी सख्ती से अमल करवाते थे। वो हर किसी से यही तकाजा करते कि वो उनके तराशे कानून और रसूम व रवाज पर सख्ती से कारबंद रहें, मगर उनके अपने दिलों में हिर्सो हवस पंजे गाड़े बैठी रहती। यसू ने खफा होकर उनसे कहा, मरकस 7 बाब 9 से 13 आयत। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान
यानी खुदा की नजर हो चुकी। तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो और ऐसे बहतेरे काम करते हो। मत्ती 15 बाब 12 से 14 आयत। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई है? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। बच्चों, खुदा की नजर में ऐसा शख्स अहम है जो दिल का सच्चा और मुखलिस हो। अगर किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत और अच्छी सोच कायम हो जाए, खुदा की नजर में वो पाक है। ज़ाहरी आंख की तसल्ली की खातिर बाहर से खूब सफाई कर ली जाए तो इससे दिल की स्याही दूर नहीं होती। ताहम ये बातें फरीसियों के सरों के ऊपर से गुजर गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यसू और खुदा का एक वजूद होने की बातें यहूदियों की समझ में ना आ सकी थीं। यसू ने कहा था, फरीसी खुद भी अंधे हैं और दूसरे अंधों को राह दिखाने के दावादार हैं। बच्चों, क्या किसी अंधे को राह सुझाई देगी? नहीं। तो अगर आप किसी अंधे के साथ चलें, आप पर लाजम है उसे बताएं सड़क किधर है, कहाँ कार से बचना है, आगे गड़ा है, ठीक है ना? यूं आप भी बच जाएंगे और उसे भी बचा लेंगे। अगर आपको खुद भी दिखाई ना दे रहा हो, ये भी मालूम ना हो कि साथ चलने वाला तो अंधा है, तो कैसा अंजाम होगा? होगा ये कि आप दोनों ही कार के नीचे कुचले जाएंगे या किसी नदी नाले में गिर पड़ेंगे। कोई भी हादसा हो सकता है। अगर हमारी अपनी निगाहें दुरुस्त हों, ऐसे में चाहे अंधों के पीछे ही क्यों ना जा रहे हो, हमें भटक जाने का एहसास जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी अंधे हों तब इकट्ठे गड्ढे में जा पड़ेंगे। बच्चों, हमें खूब सोच समझ कर चलना होगा। लोगों की कही हर बात पे कान धरने और उनकी राहें अपनाने से बचना होगा। बल्कि आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी रस्म की बुनियाद यसू है या लोगों की देरीना आदत। क्या लोगों के राहो रस्म यसू के फरमान से मुताबिकत रखते हैं? अगर हमारी अपनी निगाहें दुरुस्त हों, ऐसे में चाहे अंधों के पीछे ही क्यों ना जा रहे हों, हमें भटक जाने का एहसास जरूर हो जाएगा। अजीजों, हमें सीखना होगा अपनी राहों के दुरुस्त इंतखाब की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। चाहे हम दूसरों की तकलीद में बदी की राहों पे चल निकले या अपनी पसंद से खताकार जिंदगी अपनाई, दोनों सूरतों में हमें अदालत का सामना करना ही होगा। ऐसा कभी ना सोचें, ये तो फलां शख्स था जिसने मुझे ऐसा करने को कहा। आपकी अपनी आंखें हैं, अपनी अकल है, सोचें और दुरुस्त फैसला करें। क्या ऐसी और भी बातें हैं जो फरीसियों की निगाह में शरीयत का अहम हिस्सा थी मगर यीशु ने नहीं अपनाई? सबत के दिन बालें चुनना, मत्ती 12 बाब 1 से 8 आयत। उस वक़्त यीशु सबत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि
देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना ही रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तो रैत में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। अजीजों, इस बार फरीसियों ने यीशु को किस बात पर कसूरवार ठहराया? अरे हाँ, यीशु के शागिर्दों ने भूखे होने के सबब से खाने की गरज से कुछ बालें तोड़ ली। इस्राएल में ये दस्तूर था कि अगर कोई जरूरतमंद किसी खेत में घुसकर कुछ बालें चुन ले और हस्बे मंशा वहीं खेत ही में बैठकर खा ले तो इसमें कोई हरज नहीं समझा जाता था। शर्त सिर्फ ये थी कि वो बोरी भर के साथ ना ले जाए। बहरहाल फरीसियों का कहना था कि बालें चुनना काम है और सबत के दिन काम करना मना है। यानी फरीसियों ने ये कानून बना रखा था कि सबत के दिन दाने चुनना जुर्म है। उन्हें किसी भूखे जरूरतमंद की कोई फिक्र नहीं थी कि वो आराम के इस दिन भूखा रहता है तो रहता रहे। ये फरीसी चाहते थे कि यीशु भी उनकी मर्जी के मुताबिक हर काम करता हुआ उनके असूलों की पासदारी किया करे। इसके बरअक्स यीशु की ख्वाहिश थी कि फरीसी खुदा की हाकमियत के तहत उसी के कवानीन पर चलें, यानी बेगुनाह को मुजरम ठहराने की बजाय खुदा और उसकी रहमदिली को समझें। खुदा ये नहीं चाहता कि लोगों को बहुत से असूलों के दाव पेच में फंसाकर उनकी अदालत की जाए। चुनांचे जब हम खुदा के दिल की मर्जी जान लें तो किसी के गुनाह पर इतनी आसानी से उसे मुजरिम करार नहीं दे सकते और ना ही दूसरों की खताओं पर हर दम नुक्ताचीनी कर सकते हैं। अगरचे बाइबल में बहुत से अहकाम हैं जिनकी हमें पासदारी करनी चाहिए। ये सब अहकाम हमारे लिए नहायत अहम और खुदा के हजूर अबादत ठहरते हैं, मगर इनकी वजह से दूसरों को मुजरम करार देना मकसद नहीं होना चाहिए। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, यीशु के यहूदी साथियों ने समझा कि वो तो बिल्कुल अनपढ़ है, चुनांचे उसकी तालीमात का तमस्खर उड़ाने लगे। उन्हें लगा यीशु तो यूं ही अपने आप को खुदा समझता रहता है। चुनांचे यीशु के मौजज़ों पर भी जली कटी बातें ही करते रहे। प्यारे बाप, मुझे भी हर दम यही फिक्र रहती है कि दूसरे मेरा तमस्खर उड़ाते हैं। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। जिसका जी चाहे मेरे साथ खेलने से इनकार कर देता है। कभी उस्ताद मेरी बात का गलत मतलब समझ लेते हैं। प्यारे बाप, तेरा शुक्र है तू मेरे एहसासात समझता है। तेरा शुक्र है तूने
मुझे यीशु का प्यार दिया, जो मेरी कमजोरियों पर भी मुझसे हमदर्दी रखता है। मेरी बदमजाजी और तन्हाइयों में मेरी मदद करता और यहाँ तक कि दूसरों से इंतकाम की आग में जलने से भी बचा लेता है। प्यारे बाप, दिल की खुशी और इत्मीनान पाने में मेरी मदद फरमा। हर दम तेरे साथ में खुशियाँ पाऊं ही, तसल्ली पाऊं। और प्यारे बाप, तुझे फरीसियों जैसा पाकीज़गी का ज़ाहरी रख रखाव पसंद नहीं। वो दूसरों पर तनकीद करते, अपने बनाए असूलों की खिलाफ वर्जी पर गुनहगार ठहराते, फिर ऊपरी दिल से बुरा भला कहा करते। प्यारे बाप, तुझे कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद है। तेरी ख्वाहिश है हम भी अपने दिल में ठहराई हुई कुर्बानियों से बढ़कर दूसरों को माफ करना अहम समझें। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा कि दूसरों की गलतियों की टोह में ना रहूं, खुद को दूसरों से बढ़कर ना समझूं, दूसरों की बातें समझने, दरगुजर करने और दूसरों को अपने दिल में जगह देने में मेरी मदद फरमा। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। मरकज़